اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو رنگ و نسل کے تمام تر تعصبات مسترد کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد علی اور برطانیہ کا سابقہ پاپ سنگر یوسف علی بھی اتنے ہی مسلمان مانے جاتے ہیں جتنے کہ خادم الحرمین شریفین شاہ فہد، جن دنوں میں 5ویں کلاس میں تھا۔ نہ جانے کیسے افواہ پھیل گئی کہ میں در حقیقت عیسائی ماں باپ کا بچہ ہوں جسے اغوا کر کے مسلمان بنایا جا رہا ہے۔ اس پر مقامی عیسائی آبادی میں اشتعال پیدا ہوا اور ایک چرچ نے میٹنگ کر کے یہ قرارداد منظور کی کہ مجھے بہر صورت واپس حاصل کر کے دوبارہ عیسائی بنایا جائے۔ ایک آدھ مظاہرہ ہوا اور اخبارات میں بھی میرے بارے میں کچھ شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد چرچ کمیٹی کی قیادت میں عیسائیوں کا ایک وفد جمشید پیلس آیا تھا۔ جمشید علی نے انہیں عزت و احترام سے اندر بلوایا۔ ایک پادری صاحب جنہوں نے چوکور سی داڑھی رکھی ہوئی تھی، اس معاملے میں زیادہ ہی پرجوش تھے، انہوں نے بلا تمہید کہا، جمشید صاحب، ہم اس بچے کو لے آئے ہیں جسے آپ نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ جمشید علی کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ کیونکہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ عیسائی ماں باپ کا بچہ ہے، لہذا اسے عیسائیوں کے درمیان ہونا چاہیے۔ کیا آپ سے کس نے کہا کہ وہ عیسائی والدین کا بچہ ہے؟ جمشید علی نے ملائمت سے پوچھا۔ یہ سن کر وفد کے ارکان نے بغلیں جھانکنا شروع کر دی۔ ہم نے سنا ہے، پادری صاحب بولے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میرے گھر میں پرورش پانے والا بچہ یوسف علی قطعی کسی عیسائی کی اولاد نہیں ہے۔ میری اس تردید کے بعد آپ کو تسلی ہو جانی چاہیے۔ ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ یوسف کے ماں باپ سفید فام ہیں۔ پادری صاحب نے کہا، اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ یوسف کے ماں باپ عیسائی بھی تھے؟ کیا سفید فاموں میں مسلمان نہیں پائے جاتے؟ آپ حسینیہ میں دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا، آپ سے یہ کس نے کہا کہ یوسف سفید فام ماں باپ کی اولاد ہے؟ اس کا رنگ و روپ اس کی گواہی دیتا ہے۔ اس قسم کے رنگ و روپ کے افراد تو پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ آپ نے سرحد کے پٹھان دیکھے ہوں گے، خاص طور سے آفریدی قبیلہ۔ اس کے باشندوں کا رنگ بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور ان میں نیلی آنکھوں والے بھی ہوتے ہیں۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ بچہ مقامی ہے اور مسلمان ماں باپ کی اولاد ہے؟ آخر وہ سوال پادری صاحب کی زبان پر آ ہی گیا جس کے لیے وہ یہاں تشریف لائے تھے۔ ثبوت تو آپ کو دینا چاہیے، جمشید علی نے سرد لہجے میں کہا۔ الزام آپ نے لگایا ہے، لہذا ثبوت کا بار بھی آپ کے ذمہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ آئندہ آپ اس وقت تشریف لائیے گا جب آپ کے پاس یوسف کے ماں باپ کا حتمی ثبوت ہو۔ چابر مہمانوں کو خاصی تواضع کے بعد احترام سے رخصت کر دینا۔ یہ کہہ کر جمشید علی اندر چلے گئے تھے اور کمیٹی کے ارکان بھی ناکامی لے کر لوٹ گئے تھے۔ شاید انہوں نے بعد میں مجھ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے گرد سخت پیرا تھا جو بظاہر نظر نہیں آتا تھا، لیکن کسی بھی اجنبی کے لیے مجھ تک پہنچنا آسان کام نہیں تھا۔ سکول میں کسی غیر متعلقہ فرد کا کسی بچے سے ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سکول سے واپسی پر کار میں ڈرائیور کے علاوہ ایک مسلح محافظ امیر خان بھی ہوتا تھا۔ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا بلکہ آرمی کا ریٹائرڈ SSG تھا۔ اس کی کارکردگی میں نے خود ملاحظہ کی تھی۔ جب چرچ کمیٹی وفد جمشید پیلس آیا تھا تو یہ اس سے چند مہینے بعد کے بعد تھی۔ جمشید پیلس عین ساحل سمندر کے کنارے واقع تھا اور ایک سڑک کے پار ساحل کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ سکول سے واپسی پر ہم زیادہ تر سنسان سڑکوں سے گزرا کرتے تھے۔ ان دنوں کلفٹن کا یہ علاقہ زیادہ آباد نہیں تھا۔ اس روز جب میں سکول سے نکلا تو امیر خان گیٹ پر میرا منتظر تھا۔ جمشید علی کی طرف سے سکول انتظامیہ کو ہدایت تھی کہ مجھے اسی صورت میں چھٹی کے وقت سکول سے جانے دیا جائے جب امیر خان بذات خود مجھے لینے آئے۔ دوسرے نمبر پر مہاپارا اس کی مجاز تھی اور کوئی فرد مجھے سکول سے نہیں لے جا سکتا تھا۔ جیسے ہی میں گیٹ سے نکلا، امیر خان نے میرا بیگ لیا اور تیزی سے سڑک پار کر کے کار تک آیا۔ میرے اور امیر خان کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے کار چلا دی تھی، لیکن جیسے ہی کار حرکت میں آئی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کار کا پچھلا حصہ بیٹھ گیا۔ ٹائر فلیٹ ہو گیا تھا۔ ڈرائیور نے کار سے اتر کر دیکھا اور واپس آ کر امیر خان سے بولا، کسی خانہ خراب نے ٹائر تلے سرے والی کیل لگا دی تھی۔ کون کر سکتا ہے یہ حرکت؟ امیر خان چوکنا ہو گیا تھا۔ فوراً ٹائر تبدیل کرو۔ ٹائر بدلنے میں بمشکل 10 منٹ لگے ہوں گے، لیکن اس دوران میں سکول کے باہر والی یہ سڑک ویران ہو چکی تھی۔ بیشتر بچے اپنی گاڑیوں پر آتے جاتے تھے۔ باقی بچوں کے لیے سکول بسیں تھیں، لہٰذا بیشتر بچے جا چکے تھے اور صرف وہی بچے وہاں تھے جن کی گاڑیاں کسی وجہ سے لیٹ ہو گئی تھیں۔ گرمی کے دن تھے اور کار کے اندر بیٹھے رہنا دشوار تھا، لہٰذا میں بھی کار سے اتر آیا۔ جیسے ہی ڈرائیور نے پہیا بدلا اور اوزار ڈکی میں رکھ رہا تھا کہ ایک سفید کار آ کر وہاں رکی اور اس میں سے 3 افراد نکلے جو مسلح تھے۔ ایک نے جھکے ہوئے ڈرائیور کے سر پر پستول کا دستہ مارا اور وہ کہا کر اسی جگہ ڈھیر ہو گیا۔ ایک امیر خان کی طرف لپکا اور تیسرا میری طرف آیا۔ میں نے صورتحال بھانپتے ہی کار میں گھس کر دروازہ اندر سے لاک کر لیا تھا۔ دوسرے شخص نے امیر خان کے ساتھ ڈرائیور والا سلوک کرنا چاہا مگر وہ ہوشیار ہو گیا۔ اس نے ایک طرف ہٹتے ہوئے حملہ آور کے ہاتھ پر کھڑی ہتھیلی سے وار کیا۔ حملہ آور کا ہاتھ نیچے آ رہا تھا، اسی وجہ سے وار کی شدت 2 گنی ہو گئی۔
खुश्क टहनी के चटकने की सी आवाज आई। हमलावर की कलाई की हड्डी टूट चुकी थी। उसके मुंह से जो आवाज निकली वैसी आवाज मैंने जमशेद पैलेस में बड़ी ईद के मौका पर ज़िबा किए जाने वाले एक बकरे की सुनी थी। तीसरा फर्द मेरी तरफ लपका था। मुझे दरवाजा अंदर से लॉक करते देखकर उसने पूरी कुव्वत से पिस्तौल का दस्ता शीशे पर मारा। शीशा तो नहीं टूटा, हाँ इसके हाथ पर शदीद चोट आई थी। अभी वो इस सदमे से संभल नहीं पाया था कि आमिर खान ने उछलकर उसे लात रसीद कर दी। वो सड़क पर जा गिरा। हमलावरों की 2/3 नफरी तबाहाल हो गई थी। जिसने मेरी कार के ड्राइवर को बेहोश किया था उस शख्स ने डिक्की के अकब से आमिर खान पर गोली चलाई, मगर कज़ा उसकी आई थी जिसकी कलाई आमिर खान ने तोड़ दी थी। वो हाथ थामे अब तक जमीन पर पड़ा था। उसने बड़ा गलत वक्त पर उठने की कोशिश की थी। आमिर खान पर चलाई की गोली उसके सर में उतर गई। उसकी चीखों पुकार यूं रुक गई जैसे टेप को ऑफ कर दिया जाए। वो यकीनन गिरने से पहले ही मर चुका था। अपने ही साथी को हलाक करने वाला सख्त बदहवास हो चुका था। वो जिस मकसद के लिए आए थे वो तो पूरा होता नजर नहीं आ रहा था। खुद इनको अपनी जान के लाले पड़ गए थे। सफेद कार में एक अदर ड्राइवर भी मौजूद था। जब उसने अपने साथियों को पिटते देखा तो वो कार से लोहे का एक पाइप लेकर उतरने लगा। आमिर खान ने दूसरी गोली से बचते हुए स्लिप होकर सफेद कार के दरवाजे को लात मारी। ड्राइवर की गर्दन दरमियान में थी। दरवाजा पूरी कुव्वत से उसकी गर्दन पर जा लगा तो उसकी सांस ही रुक गई थी। गर्दन की नाजुक रगें और सांस की नाली पिस कर रह गई थी। जब तक वो अपना सांस बहाल करता आमिर खान ने जमीन पर लेटे लेटे अपना पिस्तौल निकाला और डिग्गी के अक्कब में मौजूद दुश्मन की टांग पर गोली मार दी। इसने चीख मारकर पिस्तौल फेंक दिया और टांग पकड़कर नाचने लगा। आमिर खान को नुकसान उसका डांस देखने से हुआ था। सफेद कार के ड्राइवर ने अपनी सांस बहाल करने के बाद पहला काम यह किया कि आमिर खान के सर पर लोहे का पाइप मारा। वो बेहोश तो नहीं हुआ था लेकिन उसे चक्कर आ गया। इस दौरान में जब कार से बाहर जंग व जदल के भरपूर मनाजर चल रहे थे मैंने अंदर से कार के चारों डोर लॉक कर दिए थे। लिहाजा जब ड्राइवर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उसे नाकामी हुई। उसने मुश्तिल होकर लोहे का पाइप खिड़की के शीशे पर मारा मगर शीशा इस बार भी नाकाबिले शिकस्त साबित हुआ। लोहे का पाइप इस पर पड़कर उचट गया था। इसका हाथ झिंझना गया। इस बार वो इतना मुश्तिल हुआ कि उसने टांग पर गोली खाकर नाचने वाले का पिस्तौल उठाया और ऐन खिड़की के सामने खड़े होकर शीशे पर फायर कर दिया। हालांकि 2 नाकामियों के बाद उसे समझ लेना चाहिए था कि शीशे बुलेट प्रूफ है। जिंदगी में पहली बार में खौफसदा हुआ था। आखिर बच्चा ही था। अगरचे जमशेद अली ने मुझे पहले ही समझा दिया था बल्कि अमली तौर पर तजर्बा करके भी दिखा दिया था कि कार के शीशे बुलेट प्रूफ थे। इन पर गोली का कोई असर नहीं होता। सबूत के तौर पर उन्होंने मुझे कार के शीशे पर गोली चलाकर दिखाई थी। शीशे पर बाल भी नहीं आया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तुम्हें किसी से खतरा महसूस हो तो कार के दरवाजे अंदर से लॉक कर लेना, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मैंने ऐसा ही किया था लेकिन साथ ही मैं बच्चा भी था। खौफजदा होना फितरी बात थी। अहमक ड्राइवर ने बिल्कुल सामने से शीशे पर फायर किया था। गोली शीशे से लगकर उचटती हुई वापस पलटी और उसके पेट में घुस गई। मैंने उसकी सफेद कमीज पर खून का धब्बा नमूदार होते देखा। उसने दहशतज़दा नजरों से अपने खून को देखा और चीख मारकर वापस कार की तरफ भागा। हाथ उड़वाने वाला और पैर में गोली खाने वाला पहले ही कार में सवार हो चुके थे। उन्होंने मरने वाले को भी कार में खींच लिया था। शायद गोली ड्राइवर को पेट में किसी नाजुक मकाम पर नहीं लगी थी, इसलिए इसे कार वहां से निकाल कर ले जाने में दुश्वारी पेश नहीं आई। वो लोग जो अब तक कोने खुदरों में छुपे मार धाड़ से भरपूर ये सिनेमा ज़ोको शौक से देख रहे थे, सीना तान के बाहर निकल आए थे। किसी ने कबल अज वक्त मुदाखलत करके फोत होने की कोशिश नहीं की थी। आमिर खान किसी कदर होश में था और जब उसे पानी वगैरह पिलाया गया तो मुकम्मल तौर पर होश में आ गया। अलबत्ता डिग्गी में ऊंधे मुंह पड़े हुए हमारे ड्राइवर को होश में लाने की कोशिश नाकाम रही थी। इसके सर की चोट ज्यादा ही गहरी लग रही थी। इस्तिस्ना में स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड्स और प्रिंसिपल साहब भी आ गए थे। ये सुनकर उनके हाथों के तोते उड़ गए थे कि इनके स्कूल के एक बच्चे को अगवा करने की कोशिश की गई थी। मुझे फौरी तौर पर अंदर ले जाया गया जहां स्कूल का डॉक्टर जख्मी ड्राइवर का मुआयना कर रहा था। उसने तजवीज़ से कहा, मुझे चोट संगीन लगती है, इसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाना होगा। स्कूल से पहले जमशेद पैलेस फोन करके वहां इस वाक़े की इतला दी गई। फिर जख्मी ड्राइवर के लिए एम्बुलेंस तलब की गई। तीसरा फोन मकामी पुलिस स्टेशन किया गया। पहले एम्बुलेंस आई, इसमें जख्मी ड्राइवर को अस्पताल रवाना कर दिया गया था। फिर जाबर आया। जमशेद अली की गैर मौजूदगी में तमाम मामलात का जिम्मेदार वही होता था। उसने आते ही आमिर खान से हमलावरों के बारे में पूछा और कुरेद कुरेद कर सवालात करता रहा कि वो कौन थे, क्या इनमें से कोई पकड़ा गया और ये कि इनकी खास निशानी इल्म में आई। आमिर खान ने सारे सवालों का जवाब नफी में दिया था। मैंने महसूस किया कि यह सुनकर जाबर ने जैसे सुकून का सांस लिया था।
इस ससना में एक सब इंस्पेक्टर मकामी थाने से आ गया था। पहले तो इस बात पर चीबा चबी था कि पुलिस के आने से पहले जख्मी ड्राइवर को अस्पताल क्यों रवाना किया गया था, लेकिन जब उसने जमशेद अली का नाम सुना तो बिल्कुल सीधा हो चुका था। अच्छा जी, गाड़ी में जमशेद साहब का बच्चा था? उसे फिक्रमंदी से कहा। आजी साहब तो हमारा बाजा बजा देंगे। पहले वो आमिर खान को थाने ले जाने पर मुसर था, मगर बाद में वो खुद ताबेदार खादमों की तरह उसे कार तक छोड़ने आया था। जाबर ने मुझे अपनी कार में ले जाना चाहा, लेकिन आमिर खान ने इनकार कर दिया। यूसुफ बाबा सिर्फ अपनी कार में आ जा सकते हैं। मेरी कार में क्या खराबी है? जाबर ने गुर्रा कर कहा। आपकी कार बुलेट प्रूफ नहीं है, मुमकिन है दुश्मन कहीं रास्ते में घात लगाकर बैठे हो। आप जाए, मैं यूसुफ बाबा को लेकर आता हूँ। तुम्हारे सर पर चोट लगी है, रास्ते में कार न संभाल सके तो हादसा कर बैठोगे। ये चोटें मेरे लिए नई नहीं है, आमिर खान ने एतमाद से कहा। आप फिक्र न करें। फिक्र कैसे ना करूं? जाबर का लहजा बदस्तूर खराब था। ऐसा करो, तुम मेरी कार ले जाओ और मैं यूसुफ को लेकर आता हूँ। आमिर खान ने एक बार फिर नफी में सर हिला दिया था। यूसुफ बाबा मेरी जिम्मेदारी है और मैं एक ही सूरत में ये जिम्मेदारी किसी और के सुपुर्द कर सकता हूँ, जब मुझ में इसे संभालने की हिम्मत न रह जाए। अपनी बात रद्द किए जाने पर जाबर की आंखों में कहर की बिजली सी चमकी थी। वो जमशेद अली का दस्ते राज था और आमिर खान एक मामूली मुहाफिज। लेकिन मसला ये था कि आमिर खान को खुद जमशेद अली ने बराह रास्त अपॉइंट किया था और वो इन्हीं को जवाब दे था। जाबर ने अपनी कार में बैठते हुए पूरी कुव्वत से दरवाजा बंद किया था और हमारी तरफ देखे बगैर निकल गया था। मैं पहले ही अपनी गाड़ी में मौजूद था। आमिर खान ने अंदर बैठते हुए कार चला दी। रास्ते में उसने कार एक गैर मुतवक्का समत में मोड़ ली थी। मैं परेशान नहीं हुआ, मुझे आमिर खान पर पूरा भरोसा था। फिर उसने कार एक वीरान जगह रोक ली और सामने रखा राइटिंग पैड उठाकर इस पर कुछ लिखने लगा। इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि उसने देखते ही देखते 2 सफ़े भर दिए। फिर उसने ये सफ़े फाड़े और इन्हें मोड़कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। इसे हिफाजत से अपने बैग में रखिए। इसमें क्या लिखा है? मैंने तजस्सुस से उन्हें खोल कर देखा। इसमें किसी नामानूस रस्मुल खत में कुछ तहरीर था। यह ना तो उर्दू थी और ना ही अंग्रेजी। मैं इन दोनों जुबानों से वाकिफ था। आमिर खान ने कार दोबारा आगे बढ़ा दी। यूसुफ बाबा, गौर से सुनिए। अब मैं आपको जो बात बताऊंगा वो आप किसी को नहीं बताएंगे, सिवाय जमशेद साहब के, महापारा बेगम को भी नहीं। ये कागज जो मैंने आपको दिए हैं, इन्हें हिफाजत से कहीं छुपा कर रखिएगा और कोई पूछे तो साफ इनकार कर दीजिएगा। कोई आपसे जबरदस्ती नहीं पूछेगा। अगर मैं मर जाऊं या गायब हो जाऊं तो आप स्कूल नहीं जाएंगे, बल्कि जमशेद पैलेस से बाहर भी नहीं जाएंगे। अगर कोई ले जाना चाहे तो साफ इनकार कर दीजिएगा, जब तक कि जमशेद साहब वापस ना आ जाएं। लेकिन क्यों? मैंने पूछा। यूसुफ बाबा, कुछ लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। वो आपको अगवा करना या मार देना चाहते हैं और आज भी वो कामयाब हो जाते अगर मैं ना होता। अब वो पहले मुझे रास्ते से हटाएंगे, क्योंकि मैं जमशेद पैलेस में छुप कर नहीं बैठ सकता। लेकिन खैर, ये बातें अभी आपकी उम्र से ज्यादा है। लेकिन आपको याद होगा कि जमशेद साहब ने आपसे कहा था कि मुझ पर एतमाद करें और मैं जो कहूं वही करें। आप मेरे कहने पर अमल कीजिए। यह पर्चा अपनी किसी किताब में छुपा लें और पैलेस में चाहते ही इसे किसी ऐसी जगह छुपा दें जहां कोई और ना पहुंच सके। और याद रखिएगा, अपने जमशेद पैलेस से किसी सूरत निकलना नहीं, बल्कि अपने कमरे से भी कम निकलिएगा। इसी वक्त हम जमशेद पैलेस पहुंच गए। जाबर पोर्च में पहले से मौजूद था। इतनी देर कहाँ लगा दी? उसने गुर्रा कर पूछा। आमिर खान ने घड़ी देखी। हम 3:15 पर वहां से चले थे और अब 3:45 हो रहे हैं। हम रोजाना तकरीबन इतनी ही देर में पहुंचते हैं। जाबर अपनी झुंझलाहट पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। मैं बैग लेकर ऊपर जातू इतना ही देख सका था। महापारा इतनी बेताब थी कि सीढ़ियों पर ही मेरा इंतजार कर रही थी। उन्होंने मुझे नहा धोकर कपड़े बदलने को कहा। जब तक मैं इन कामों से फारिग हुआ, महापारा ने डाइनिंग हॉल में खाना लगवा दिया था। लेकिन मैंने आज जो मारधाड़ और कुछ तो खून देखा था, इससे मेरी भूख उड़ चुकी थी। महापारा के इसरार पर मैंने थोड़ा बहुत खाया था। खाने के बाद हम अंदर आ गए थे। दरवाजा अंदर से बंद करके उन्होंने पहला सवाल यही किया था, यूसुफ आज क्या हुआ था? मैंने तफसील से उन्हें इन सनसनीखेज लम्हात की रोदात सुनाई, किस तरह आमिर खान ने मेरी हिफाजत की। ना जाने वो लोग मुझे अगवा करने आए थे या मारने आए थे। महापारा के चेहरे पर इत्मीनान नजर आने लगा, मगर वो अचानक ही बोली थी, तुम आमिर खान के साथ आए हो? क्या उसने रास्ते में तुमसे कुछ कहा या कोई चीज दी थी? एक लम्हे को तो मैं इनके अंदाजे पर हैरान रह गया था। फिर मैंने फौरन नफी में सर हिला दिया। मैंने कहा, नहीं, वो बेचारा तो इतनी मुश्किल से ड्राइविंग कर रहा था। महापारा मुझे गौर से देख रही थी। तुम सच कह रहे हो? मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला, मैंने उनसे नजरें चुराते हुए कहा। महापारा अजीब से अंदाज में मुस्कुराई। हाँ, तुमने आज तक मुझसे कोई झूठ नहीं बोला। एक बात याद रखो, अगर आमिर खान ने तुमसे कुछ कहा है या कुछ दिया है तो उसे छुपा कर रखना। अब तुम आराम करो। वो उठ खड़ी हुई थी। इनके जाने के बाद मैं इनके आखिरी जुमले पर गौर करने लगा।
मुझे यूं लगा जैसे महापारा मेरे झूठ से वाकिफ हो गई थी। सोचते सोचते मैं सो गया। आमतौर से दोपहर को मैं सोता नहीं था, इसलिए जब शाम को जागा तो जिस्म टूट रहा था और सर में दर्द हो रहा था। गर्म पानी से गुसल करके मुझे किसी कदर सुकून मिला था। रही सही कसर कॉफी ने पूरी कर दी थी। शाम 7 बजे एक प्रोफेसर किस्म की चीज आते थे जो स्कूल के निसाब से हटकर मुझे ना जाने क्या क्या पढ़ाया करते थे। आज मेरा मूड नहीं था, लिहाजा जब महापारा आई तो मैंने उनसे तबीयत खराब का कह दिया और उन्होंने जाकर प्रोफेसर साहब से कह दिया कि आज उनका शागिर्द छुट्टी के मूड में है। अगली सुबह जब मैं स्कूल जाने के लिए उठा तो आमिर खान अभी तक नहीं आया था। वो आमतौर से 7 बजे आ जाता था और हम 7:30 बजे स्कूल की तरफ रवाना हो जाते थे। निस्फ घंटे का रास्ता था। जब तक मैंने तैयार होकर नाश्ता किया 7:30 बज चुके थे, मगर आमिर खान नहीं आया। मैं नीचे पोर्च में आया तो वहां आमिर खान के बजाय जाबिर एक लंबे तिरंगे शख्स के साथ मौजूद था, जिसने ड्राइवर की वर्दी पहन रखी थी। इसके चेहरे पर खशखशी सी दाढ़ी थी, गाल पर किसी पुराने जख्म का निशान था, नाक पकोड़ा जैसी थी और कान सामने के रुख पर उठे हुए थे। इसके चेहरे से झलकती आयारी साफ नजर आ रही थी। ये कौन है? महापारा ने उसे देखा। ये यूसुफ बाबा का नया ड्राइवर है, जाबिर ने सपाट लहजे में कहा। आज से ये इसके साथ स्कूल जाएंगे। ड्राइवर तो अस्पताल में है, लेकिन ये आमिर खान कहाँ है? महापारा ने हैरत से कहा। मुझे नहीं मालूम कि आमिर खान कहाँ है, जाबिर ने उसी लहजे में कहा। यासीन अच्छा ड्राइवर और मुहाफिज है, ये यूसुफ बाबा की अच्छी तरह हिफाजत कर सकेगा। उसने लफ्ज अच्छी तरह पर जोर दिया था। क्या आप तैयार हैं यूसुफ बाबा? सॉरी, महापारा ने मुझसे पहले कहा। यूसुफ आज स्कूल नहीं जाएगा। इसके लिए किसी भी नए शख्स को रखने का इख्तियार सिर्फ जमशेद साहब को है और इनकी अदम मौजूदगी में मुझे है। मुझे यूं लगा जैसे जाबिर अभी फट पड़ेगा, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। उसने जहरीला लहजे में कहा, चलिए ठीक है, आप खुद ही यूसुफ बाबा को स्कूल ले जाइए, इसकी जरूरत नहीं है। अचानक ही जाबिर के अकब से आमिर खान नमूदार हुआ था। मैं यूसुफ बाबा को ले जाने आया हूँ। जाबिर और उसका साथी यासीन भोंचके से आमिर खान की सूरत देख रहे थे। इनकी हालत से लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। तुम कैसे आए? जाबिर के मुंह से निकला। फिर वो खुद ही संभल कर बोला, मेरा मतलब है तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी गाड़ी में एक छोटा सा मसला हो गया था, इसी बिना पर जरा देर लग गई। आमिर खान ने इत्मीनान से कहा। किसी ने इसकी अग्निशन के साथ एक डायनामाइट स्टिक लगा दी थी। इधर मैं चाबी घुमाता और उधर मेरे टुकड़े गाड़ी समेत बिखर जाते। जिसने भी ये काम किया था वो अनाड़ी था और आसानी से पकड़ा जाएगा। अगर उसने दस्ताने ना पहने हों तो डायनामाइट के स्टिक पर उसकी उंगलियों के निशानात होंगे। आप तैयार हैं यूसुफ बाबा? मैं तैयार हूं आमिर खान, मैंने कहा और दरवाजा खोलकर गाड़ी के पिछले हिस्से में बैठ गया। जाबिर उस शख्स यासीन को खा जाने वाली नजरों से खो रहा था। उसने ताड़ कर कहा, वो डायनामाइट स्टिक कहाँ है? मुझे दो, मैं पता चलाऊंगा कि किसकी हरकत है। स्टिक मैंने एक जगह नहायत हिफाजत से रखी है, अगर मुझे कुछ हो गया तो ये पुलिस तक पहुंच जाएगी, आमिर खान ने कहा। जैसे ही कार जमशेद पैलेस के गेट से बाहर निकली और मैंने मुंह खोला था कि आमिर खान ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए मुझे खामोश रहने का इशारा कर दिया।